Suppose you want to develop an industrial chain supplying clothing textile in the entire country. So how are you going to do it? Obviously, first you are going to start with a single industry in a certain area with a limited production facility because you want to understand the production process at a small scale. This is exactly what microeconomics is about. Microeconomics is the microscopic study of the economy. Microeconomics is the science of how people make decisions at the small scale. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट है फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल एज एन एग्रीगेट देखते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है टर्म्स सच एज नेशनल एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद अ नेशन जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल इन्वेस्टमेंट या तो टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग एंड सो ऑन। लेकिन एक सिमिलैरिटी है माइक्रो और मैक्रो के बीच में कि दे बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक टर्म और दोनों को सेम इंसान ने कॉइन किया था, द नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट Ragnar Frisch at Oslo University in 1933. Now let us begin by understanding the scope of microeconomics. Microeconomics का क्या scope है? So firstly, microeconomics deals with product pricing. आप पहले से ही फेमिलियर है डिमांड और सप्लाई कर्व से क्योंकि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं कमोडिटी का। But our microeconomics is concerned with individual demand analysis and it studies consumer behavior and supply to determine the price, but for an individual consumer. The second theory is that microeconomics is a theory of factor pricing, where again आप जानते हो कि there are 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur, and all the 4 factors contribute for the production process. तो microeconomics में हम उन्हीं factor products के factor rewards को जानते हैं जिससे हम commodity को produce कर सके. So we study all the factor pricing and their factor rewards related to that. And lastly, microeconomics is a theory of economic welfare because microeconomics deals with efficiency in the use of resources. Because we deal with efficiency in production and efficiency in consumption. मतलब जो भी आप resources use कर रहे हो production process के लिए they should be used efficiently. And efficiency in consumption का मतलब क्या होता है? We have to produce only those products which are maximally desired by the consumer. Because अगर ये दोनों होगा so this will result in maximum satisfaction and we will produce goods which are mostly desired by the people. So microeconomics shows under what conditions this economic efficiency is achieved. तो microeconomics को in short हम बोल सकते हैं it is a theory of economic welfare. Microeconomics के ये 3 स्कोप थे। अभी हम microeconomics के फीचर्स स्टडी करते हैं and then we will compare it to macroeconomics. So the first feature of microeconomics is like we have already understood that it is a theory of individual economic unit. Like for example individual firm, individual industry, individual price, individual consumer and so on. Microeconomics deal with determination of price of goods and services as well as factor of productions. तो इसीलिए माइक्रोइकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स के थ्रू. थर्डली, इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इंडस्ट्री और इंडिविजुअल कंज्यूमर के बीच का जो बैलेंस है उसे डिटरमाइन करता है. हम कोई भी 2 यूनिट्स को स्टडी करने के लिए लेते हैं और उनके बीच का इक्विलिब्रियम जानते हैं, लाइक एट व्हाट रेट वी शुड प्रोड्यूस अ सर्टेन थिंग्स टू गेट इन सर्टेन आउटपुट. फोर्थली, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू ही फंडामेंटल अजम्पशन से होता है सेटेरिस पैरेब्रस, जिसका मतलब होता है लैटिन में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि वो हमारी थ्योरी के साथ इंटरवीन ना करे, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, laissez-faire पॉलिसी, जिसका मतलब होता है कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड देयर इज प्योर कैपिटलिज्म इन द इंडस्ट्री. So this makes analysis simple and our model simple because nothing will interfere. Fifth point, microeconomics is based on slicing method because as we know we divide the whole economy into small individual units and study each of the units separately, जैसे कि individual income over national income, individual demand over aggregate demand. This is known as slicing method. Now the marginalism concept is the key for microeconomics. जैसे हमने यूटिलिटी वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है. मार्जिनल मीन्स द चेंज विच इज ब्रॉट ऑन बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट. तो जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसके वजह से जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल चेंज. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द चेंज ब्रॉट इन बाय अ सिंगल वेरिएबल. अगर एक वेरिएबल चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर. 7th पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर.
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपनी कमोडिटी को अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर टेस्ट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड सो ऑन. तो हम अलग अलग मार्केट में अपनी कमोडिटी को चेक कर सकते हैं. हाउ डज इट वर्क इन दैट? And lastly, microeconomics has a limited scope because we are studying it only for individual unit. हम एक इंडस्ट्री, एक प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर, एक मार्केट को लेकर स्टडी कर रहे हैं. सो वी कैन नॉट डील विद द बिगर प्रॉब्लम लाइक ऑफ द कंट्री. तो जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सो दैट डज नॉट डील विद माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो वी हैव टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर दैट. So we will compare the features of macroeconomics now with microeconomics. So the first point is study of aggregates. Macroeconomics deals with the concepts such as national income and national output. मतलब पूरी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और पूरी कंट्री की इनकम क्या है, जीडीपी क्या है. So we deal with bigger concept. The second point is macroeconomics is an income theory, जबकि microeconomics the price theory. So in income theory वी डिटरमाइन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री और उसको मेजर कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड कोई फ्लक्चुएशन है हम उसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम से सारी के सारी बिजनेस साइकिल इफेक्ट होने वाली है. और अगर बिजनेस साइकिल इफेक्ट होती है तो इट इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द कंट्री. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी मेजर द नेशनल इनकम. द थर्ड पॉइंट इज जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज पार्शियल इक्विलिब्रियम, अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जनरल इक्विलिब्रियम, which means it determines the price of the commodities not for an individual industry or for individual consumer but for the entire industry or for the entire economy. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस फॉर द एंटायर इकोनॉमी. नाउ देयर आर मेनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. मतलब सारे के सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट है. किसी भी एक वेरिएबल में चेंजेस बाकी वेरिएबल में चेंजेस ला सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट कैन कॉज चेंजेस इन द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस विच डील्स विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स. द फिफ्थ पॉइंट इज लंपिंग मेथड. जैसे माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड था, हम एक इंडिविजुअल एक कमोडिटी को स्टडी करते थे. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स विच स्टडी द एंटायर कमोडिटी फॉर द एंटायर कंट्री, which can be described by Professor Bolding. Like for example, an individual tree cannot reveal the properties of the forest. So therefore, the individual tree is microeconomics and the forest is macroeconomics. The sixth point is macroeconomics studies factors that contribute to the economic growth and development. तो जिससे हम ग्रोथ मॉडल बना सकते हैं कंट्री के लिए, और जो मॉडल कंट्री के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, सो वी कैन फॉलो दैट मॉडल. सो द मेन कंसर्न ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स is the economic growth of the country. Now changes in price level is studied in macroeconomics. So what we do is we find the average price of all the commodities of all the goods and services in the country, और इसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल. तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेजर करने के लिए वी कैलकुलेट द जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री. एंड लास्टली, according to Keynes, microeconomics is a policy oriented science because it suggests economic policies to promote economic growth in the country, जिसके वजह से हम कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. सो बाय दिस पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज with distinguish between you can learn the features also separately and you can learn the comparison also. So this way you can frame your answers. And this video is brought to you by Logical Learners channel. If you want more videos like this, please click on the subscribe button and click on the bell icon and like the video for more videos like that. Thank you so much.